Okay. Assalamu alaikum and welcome to all candidates. My name is Faseeh Rahman and I am serving as a lecturer of physics in Government Associate College, Gujarat. And today's session topic is how to communicate effectively in interview. Okay. So first of all, I will just introduce myself. कुछ काफ़ी लोग हैं जो नहीं जानते कि मेरे कैरियर के बारे में और मेरी previous जो achievements हैं. So first of all, in 2015, I got third position in MSc from GC University Faisalabad. In 2016, I joined school education department. In the induction training of that job, I got best science presentation award. And then I left that job and went for the MPhil in Qaeda University. And I'm in the second in admission. And during MPhil, I just attended the 6th LHC school. And in this school, I got first position as when I am representing the final presentation. And after that, I just cleared the scientific officer written test as well as interview. And in 2017, and in 2018, I just cleared both interview and written test for assistant manager, that is another site of Atomic Energy Commission, and then passed the interview of PPSC MPhil fellowship. And now I am as lecturer of physics, that is recommended by the PPSC. And now I'm waiting for the FPSC result of interview as well. तो मैं जो भी यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा तो उसके बैक पे ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस है. आई होप कि ये एक्सपीरियंस इनफ है कि बातों पे बिलीव किया जा सके. ओके, so that is all about for to my experience. So I start from a book and named How to Talk So People Listen, written by Sonia Hamlin. And Sonia Hamlin is an effective communicator, well-known television contributor, and author of 5 books. According to that book, human voice is the most effective thing in the universe. It can start a war, and it can win a heart by saying only 3 words. But most of the time, when we speak, people don't want to listen to you. But why is that? And where it actually begin? According to the Sonia Hamlin, that begin at very beginning. When we want to cry, we heard a word that don't cry. When we want to express our emotions, like when we are angry, then we heard a word that don't cry, control your temper. And that is the direct line from feeling to action is actually interrupted, rewrote, and deterred. So according to the author, that is the main reason that we cannot express our point of view at the workplace and especially in an interview. Okay, that is the main cause. Okay, but that presentation, that session is actually based on how to communicate effectively in interview. So I will just focus on the interview environment. Okay, so that is the content. So first I just talk about what is meant by effective communication and what are the types of communication, and some basic thing about the interview environment, interview room environment, and what is meant by the ideal and reality. Because आपने काफी सेशन सुने होंगे, आप मेरा भी सेशन ले रहे हैं, तो जो आइडियली बातें की जाती हैं और रियलिटी में कितना डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे. Okay, so what is meant by an effective communication? So transmitting your message clearly and concisely so that it is understood. So in an interview, if you answer a question which is actually clear and concise, that is effective communication in an interview. Okay, so what is meant by the effective communication? It is about engaging your audience. Audience mean कोई भी हो सकते हैं. अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपकी इंटरव्यूअर होंगे, और अगर आप presentation दे रहे हैं तो आपके जो सुनने वाले होंगे. Delivering your point of view and have an impact on audience. Okay, so there are main 2 types of verbal communication. There are 2 main types of verbal communication. Sorry. There are 2 types of communication. One is verbal communication and other is non-verbal communication. And
मैं जस्ट आपसे ये पूछ लेता हूँ कि वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो मिक्सचर है वो आपके सामने है। वर्ड्स हैं, वॉइस है, टोन है, मॉड्यूलेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशन है और मूवमेंट ऑफ आर्म है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप इसको 100% में से कितने कितने परसेंट इसको देंगे, कितने परसेंट आप वर्ड्स को देंगे, कितने परसेंट आप वॉइस को देंगे, कितने परसेंट टोन को, मॉड्यूलेशन को, बॉडी लैंग्वेज को, फेशियल एक्सप्रेशन को, तो आपके अकॉर्डिंग वर्ड्स की कितनी इंपॉर्टेंस है अफेक्टिव कम्युनिकेशन में? जी, आई थिंक 10%. ओके गुड, 10%। वॉइस? I think this is also 10%. ओके 10%। And tone is almost 7 to 8%. ओके And modulation also 10%. ओके, you are fixed, you are actually constant variable. But body language is, I think, 60%. That's nice. Okay, facial expression? It is also 5%. Oh, okay, good. And movement of arms, this is Remaining. Okay, 5 remaining. to 8%. Okay, जी जी remaining. okay, good. Anyone else? Just make it. Then we will move on. I think words will be 20% and the tone it's 25%. Word is 20% and tone is 25%. And what about the body language? Okay, I just make it more reliable to you. So that is the whole thing. What percentage that you give to the words, and what percentage, the sum of percentage to the voice, tone, and modulation, and body language, facial expression to the movement of arm. And anybody else who is actually segregating and just giving the percentage to these categories. Okay, sir, you give percentage correct. Huh? सर आप ही परसेंटेज दें, हमने तो दे दी है. Okay, anybody else की मैं सोच रहा था कि कोई और भी दे देता. चलें. According to a research reference, you can see below that presentation, you can see clearly. So according to a research, the words have only 7% contribution to an effective communication. Voice, tone, and modulation about 38%, and body language, facial expression, and movement of arms is about 55%. So don't be very worried about the words. Words इतने important नहीं हैं जितनी आपकी way of expression है. हाँ, सही आंसर देना है इंटरव्यू में. ऐसा नहीं है कि आंसर भी गलत दे दिए. इतने वर्ड्स अच्छे हूं, इतने वर्ड ठीक हूं कि आंसर सही दे रहे हूं. ठीक है, मतलब जो पूछा है वही दिए हैं आंसर, लेकिन किस तरह से दिया है, कैसे आप एक्सप्रेस कर रहे हैं वहां पे. मैंने आपको पता है एक इंटरव्यू भी कंडक्ट किया था जो कि टॉपर हैं 2022 में. उन्होंने भी इसी पे ही फोकस किया है कि आपके पास आपने किस तरह से आपने आंसर को रिप्रेजेंट किया है वहां पे, वो इंपॉर्टेंट है. ओके, so that is the whole story. So words are cerebral, they don't have any kind of emotions. तो word इतने important नहीं है. उसकी मैं आपको यहाँ पे एक clear example देता हूँ और वहां से आप clear हो जाएंगे कि yes, words are not essential to communicate effectively in interview or any other area. So we know all that global warming and climate change could kill all of us because it is very dangerous, but no one actually notice it. But why? But why? That is the we can say that question. So I can give you an answer that जो लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो लोग इसके बारे में अवेयरनेस देते हैं, वो they are scientists, they are boring scientists, and they are not having skills to how to communicate effectively. कि लोगों की बातों में असर, मतलब लोगों के दिलों में असर कर दें जो आप वो बात करें. ठीक है, they are just simply like a robot and they just say this graph is actually telling us that overall temperature is actually increasing and that is alarming because the temperature is increasing, that we can that is very harmful for us. इस तरह का इस तरह की टोन किसको प्रेस करेगी? इस तरह की टोन किस
पे असर करेगी? नो, नॉट एट ऑल. सो योर फेशियल एक्सप्रेशन, योर बॉडी लैंग्वेज, योर टोन एंड मॉड्यूलेशन एंड पॉजेज आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, और यही इंपॉर्टेंस आपको इंटरव्यू में भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, आपको पता है, आप एक सिगरेट का बॉक्स देखते हो, उसके ऊपर लिखा होता है तंबाकू नोशी का अंजाम कैंसर है, मुंह का कैंसर है. बट nobody notice it. Why? Because it is not having any kind of effectiveness, because ये just words हैं. अगर इसको कोई effectively express करेगा तो ही इनमें जान आएगी, लोगों को इस पे असर होगा. समझ में आ गई बात है? मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी बात. नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्चुअली वेस्टर. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है. इवन आप इंटरव्यू में हैं, इवन आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता क्या कुछ है? योर बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू एक्सप्रेस द थिंग्स व्हेन यू आर स्पीकिंग, व्हेन यू आर टेलिंग समथिंग, इज योर बॉडी इज सिंक्रोनाइज्ड विद योर वर्ड्स. योर आई कॉन्टेक्ट, आप किस तरह से देख रहे हैं. यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात है कि आप इंटरव्यू में, ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि आपने यहाँ पे माथे पे देख रहे हैं, आंखों में नहीं देखना. अरे भाई, आंखों में नहीं देखोगे तो ऐसे लगोगे जैसे आप महंगे हो, मतलब देख कहीं हो रहे हो, बोल कहीं हो रहे हो. तो आपने बोलना है, देखना है आंखों में, लेकिन ऐसे नहीं देखना कि हाँ भाई क्या पूछ रहे हो. नो, नॉट एट ऑल. इस तरह से नहीं, एक डिसेंट से वे के साथ आपने आई कॉन्टेक्ट रखना है. मूवमेंट ऑफ योर हैंड इज इंपॉर्टेंट. मैं भी अभी आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरी हैंड की मूवमेंट आप देख रहे हैं. एंड द रिदम ऑफ योर स्पीच. ऐसा नहीं है कि रटा हुआ रटा आपने आगे बता देना, या आप बहुत ज्यादा अटक रहे हो. दैट इज नॉट गुड थिंग. सो अब इंटरव्यू इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं. ग्रीट विद द इंटरव्यूअर विद ए फर्म शेक हैंड. अगर शेक हैंड तो होता नहीं है, यूजुअली पीपीएससी में शेक हैंड नहीं है, तो आप शेक हैंड की तरफ जाना ही नहीं है. तो ग्रीट करें, दरवाजा खोला है प्रॉपरली. मैं उस पर पूरी एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ. तो दरवाजा आपने खोला है, डोर ओपन किया है, तो आप, मैंने कुछ एक दो वीडियोस देखी हैं जो कि ऑथेंटिक चैनल्स हैं, लेकिन वो फिर हर एक का एक्सप्लेन करने का अंदाज डिफरेंट होता है. तो वहां पे कहते हैं कि आपने एक स्माइल देनी है और आपने अस्सलाम वालेकुम कहना है. अस्सलाम वालेकुम सर. नो, दैट इज नॉट द केस. ऐसे नहीं कहना अस्सलाम वालेकुम सर. नो, ये ऐसे नहीं बोलना, क्योंकि अब आप खुद भी समझदार हैं. आपने इंटरव्यू देने जाना है, यू आर नॉट स्टूडेंट एनी मोर. तो आप सिंपल से एक पोलाइट सा क्वेश्चन आप सलाम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम सर, मे आई. आप वो कहेंगे ऑब्वियसली सिट ऑन दैट चेयर. सो मेंटेन स्टेडी आई कांटेक्ट. आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, आंसर तो करना ही है, लेकिन एक आई कांटेक्ट के साथ. नीचे नहीं देख के रहना, ऐसे नीचे देख के आंसर कर रहे हैं, या ऊपर नहीं मुंह उठा लेना. आई कांटेक्ट रखना, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अगले को लगे कि आप घूर रहे हो. ठीक है, कम्युनिकेट पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन एंड स्पीच क्वालिटीज. पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन रखना है. इवन आपको क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहा, क्वेश्चन का आंसर ना आना कंप्लीटली नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है. किसी को भी कोई लाजमी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन आते हों. कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको इतना इंटेंशन वाली बात नहीं है कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, लेकिन आपने पॉजिटिव रहना है, नर्वस नहीं हो जाना. डिमॉन्स्ट्रेट एंथुसिज्म एंड इंटरेस्ट विद गुड पोस्चर. ठीक है, मतलब आप बताना चाहेंगे, आपको ये एक्सप्रेस करना चाहिए कि यू लव योर सब्जेक्ट. इफ योर सब्जेक्ट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनीथिंग एल्स, तो आपको ऐसे एक्सप्रेस करना है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं शौक से पढ़ रहा हूँ. ठीक है, मेरे अंदर इसको समझने का, इसको जानने का, इसको एक्सप्रेस करने का जज्बा है. मैंने ऐसे ही नहीं किसी को देखा एमएससी फिजिक्स कर ली, या एमएससी मैथ कर ली, या केमिस्ट्री कर ली, एक्स्ट्रा. ठीक है, अनइंटेंशन नर्वस बिहेवियर भी नहीं शो करना. समटाइम ऐसे होता है कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन बिहेवियर है कि आप थोड़े से नर्वस हो जाते हो. तो डोंट शो दिस. और इसकी ये कैसे होगा कि आप शो नहीं करवाओगे? वो इस तरह से होगा कि आपको पहले से प्रैक्टिस होगी, तो तब ही आप ये चीजें इंटरव्यू में कर पाओगे. अगर आपने मॉक इंटरव्यू दिए होंगे या डेमो दिया होगा, तो ये फिर आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी आपकी वीकनेस है, और फिर वीकनेस पे आपको वर्क करना पड़ेगा. तो उसको आप क्या करोगे, अपनी एक्सेंट में से एलिमिनेट कर लोगे, सेग्रीगेट कर लोगे, एग्जाम्प्ट कर लोगे. सो वर्बल कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ इंटरव्यू. किस तरह से? यूज क्लियर कंसाइज आंसर्स. ठीक है, डोंट रैम्बल, मतलब इधर उधर की बातें नहीं मार देनी. डोंट यूज फिलर्स व्हेन आंसरिंग क्वेश्चन, स्पेशली आप ये कहते हैं कि अगर किसी ने पूछा न्यूटन्स लॉज क्या हैं, तो आप सिंपली कहते हो दैट इज दैट. नो, दैट इज नॉट द केस. ओके, तो नहीं, उनको पता है, आपने बताना है कि आपको क्या पता है.
ठीक है। तो इस तरह से ये डिकोरम है, ये कुछ रूल्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं इंटरव्यू रूम के, वो आपने फॉलो करने हैं। डोंट एग्जैजरेट एंड डोंट बी नेगेटिव अबाउट एनीथिंग इन एनी वे, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना। इवन अगर मेरा जो लास्ट इंटरव्यू था मींस के, जो मैं पीपीएससी की बात कर रहा हूँ, they just try to make me confused। एक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन नहीं, तीसरा क्वेश्चन। मैं टोटली नर्वस हो चुका था अंदर से, ठीक है, हार्ट बीट तेज थी, लेकिन मैंने शो नहीं करवाया, ठीक है। तो एग्जैचुरेट नहीं करना, नेगेटिव बिहेवियर नहीं शो करना, फिर भी स्माइल करनी है। अगर उन्होंने ये कह दिया कि आपने तो गलत आंसर किया है, मे बी आप गलत आंसर भी कर सकते हो भी सकता है। अगर आपने सही आंसर किया है फिर भी वो कह रहे हैं कि आपने गलत आंसर किया, तो आपने उसको नहीं कहना नहीं सर मैंने सही आंसर किया, आपने फिर भी स्माइल रखनी है फेस पे, ठीक है। तो फेस पे स्माइल बड़ी इंपॉर्टेंट है। लिसन टू व्हाट बीइंग आस्क्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट। 4 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, 4 पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। लिसन टू व्हाट इज बीइंग आस्क्ड एंड आंसर अप्रोप्रिएट, ठीक है। अक्सर ऐसे होता है, अक्सर ऐसे होता है कि हम क्वेश्चन नहीं पूरा सुनते और उसका आंसर करने लग जाते हैं, एंड दैट विल लीड टू द नेगेटिव सेंस, ठीक है। तो फिर वो नेगेटिव चला जाएगा। तो प्रॉपरली पहले सुने कि वो पूछ क्या रहे हैं, फिर उसका आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है। यूज प्रॉपर ग्रामर, नो स्लैंग्स, ठीक है, स्लैंग्स नहीं यूज करनी। अब मैंने आधा सेशन इंग्लिश में किया है, आधा सेशन मैंने उर्दू में किया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी चीजें एक्सप्लेन करनी थी। ऑब्वियसली आई कैन एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश, बट आई जस्ट फील दैट कि हम नेटिव लैंग्वेज में आ जाते हैं कि उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकें। ओके, मेंटेन एंड प्रॉपर सेंस ऑफ ह्यूमर। आपने उसको बोरिंग नहीं लेके जाना। अगर कोई उन्होंने इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया, मैं उसको रिसेंट जो एफपीएससी का मैंने इंटरव्यू दिया, it was a good interactive session, interactive interview, because they are feeling good to talk, so so that because मैं भी चाह रहा था कि बातें हों। तो एंड पे जो मेंबर थे एक, वो कहते हैं कि हमने बाकी के इंटरव्यू लेने हैं तो वाइंड अप करें। तो फिर जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट था उन्होंने कहा ओके ठीक है, यू कैन गो। तो इस तरह से भी हो सकता है। सो मेक अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर हेयर। सो अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से कुछ डेमो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं स्लाइड्स में। व्हाट इज यूनिट सेल? दैट इज द सिंपल क्वेश्चन। So how can you represent the answer of that question? So according to me, so we can simply say that the smallest group of atom which has overall symmetry of a crystal, and by repeating that unit cell we can get entire crystal. That is the whole thing. आपने इस तरह से अगर एक्सप्लेन किया, that is impressive. आप अगले को इम्प्रेस करेंगे। अगर आपने सिंपली मोनोटोन से बात की तो चीजें मुख्तलिफ हो जाएंगी। इसी तरह What is meant by doping? We all know about that. हम एफएससी से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है intentionally adding impurities to the intrinsic semiconductor is called doping, and there are 2 types of doping, which is one is called the N type and other is called the P type doping. That is enough. अगर वो पूछ लेते हैं कि N type क्या है, P type क्या है, then you move on, ठीक है। इतना क्वेश्चन का आंसर इनफ है, ठीक है। Next, could you explain wave particle duality? Okay, yes, that is good question. और इसको आपने किस तरह से डील करना है ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो ऑब्वियसली आपके वर्ड्स आपकी बॉडी लैंग्वेज का साथ देंगे। So wave particle duality is purely a quantum mechanical concept. According to this concept, every quantum particle have dual nature, either it behave like a wave or a particle, and it is actually depend upon the experiment that we are doing. Simple. उनको पता चल गया कि आपको पता है व्हाट इज मेंट बाय वेव पार्टिकल डुअलिटी। अगर उसके बारे में अगर काउंटर क्वेश्चन आता है तो आप काउंटर क्वेश्चन को आगे आंसर करेंगे। तो कंसाइज एंड प्रिसाइज आंसर इंपॉर्टेंट है इन इंटरव्यू। ओके, सो वी से प्लाज्मा इज quasi neutral. Why? Quasi neutral or quasi neutral. So what is meant by quasi neutral and why we say that? So quasi is a Latin word, means appears to be an almost equal. Okay, so which means that the overall plasma is neutral, but there are some parts, there are some places in the plasma where negative and positive charges have some kind of dominance. Okay, the overall plasma is neutral, but there is a positive negative charge dominance inside the plasma. That is why we called quasi neutral or quasi neutral plasma. Okay, that is simple. तो इस तरह के क्वेश्चन का अगर आंसर आप इस तरह से देंगे तो आपका इंटरव्यू इफेक्टिव होगा। इवन आप जेस्चर यूज कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, अगर आपने
कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस देनी है, और अगर वो बोर्ड मार्कर का यूज का इस्तेमाल करते हैं तो आप बोर्ड एंड मार्कर यूज करें। इवन आप फिजिकल चीजें लाइक पेंसिल मार्कर को भी किस तरह से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, दैट इज गुड। तो ये चीजें इफेक्टिव इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट इज द होल थिंग, दैट इज द सिंपल सेशन। अब मैं बात कर लेता हूँ, हम कहते हैं कि नहीं आइडियल चीजें होती हैं, रियलिटी से दूर होती है, इंटरव्यू रूम में बड़ी और तरह से इन्वायरमेंट होता है, बड़ा हॉट इन्वायरमेंट होता है, आपको चीजें भूल जाती हैं। ऑब्वियसली योर प्लान एंड रियलिटी मैंने यहाँ पे शो किया है, दैट इज योर प्लान, that is very clear plan, but reality is some like this, and same in the case of interview as well. So you just think about that interview will go like smooth thing. Obviously जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, reality might be different, but मजे की बात क्या है कि जो प्लान किया है उसी की भी डायरेक्शन वही है और रियलिटी की भी डायरेक्शन वही है। मींस देयर आर one-to-one resemblance with your plan, with your we can say that with your preparation, and जो कि आप जिसको आपने रियली कैरी करना है, मींस कि जो इंटरव्यू आपने देने जाना है। तो मैं कहने का मकसद ये है, अगर आप आइडियल को कैरी करोगे, आइडियल को फॉलो करोगे, तो ऑब्वियसली आप रियल में भी अच्छा परफॉर्म कर सकोगे। एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं। आइडियली हमें इस तरह की अर्थ नजर आती है, ठीक है, आइडियली हमें इस तरह की अर्थ नजर आती है। क्या इस तरह की अर्थ है? नॉट एट ऑल। रियलिटी में तो इस तरह की अर्थ है जो कि आपको नजर आ रही है, ये ऐसी अर्थ है, लेकिन वी यूज अप्रोक्सीमेशन मेथड्स और ऑब्वियसली इट्स वर्क वेरी वेल। तो कहने का मकसद ये है कि आप अगर आइडियल चीजों को फोकस करोगे, क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन के आंसर लिखोगे, उनको बार बार रिपीट करोगे, मिरर के सामने खड़े होकर अपने फेशियल एक्सप्रेशन देखोगे कि मैं किस तरह से एक्ट करता हूँ, मेरे आईब्रोज मूव करते हैं या नहीं करते, क्या मैं इफेक्टिवली बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रहा, मेरे मूवमेंट ऑफ हैंड कैसे हैं, मैं कंधों को किस तरह से हिलाता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको पता चलेगा कि मुझे कौन सी चीज सेग्रीगेट करनी है, कौन सी चीज रखनी है, कौन सी नहीं। इवन मैं इंशाल्लाह मॉक इंटरव्यूज जो कि मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं सेशन में, उनके मॉक इंटरव्यूज हैं। एक रफ इंटरव्यू होगा, रफ इंटरव्यू के साथ मैं इंडिकेट करूंगा कि ये मिस्टेक्स हैं, ये थोड़ी वीकनेस हैं, इन पे काम करना है। काम करने के बाद एक और इंटरव्यू होगा, एक और इंटरव्यू के बाद एक फाइनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसको मैं कोशिश करूंगा कि 3 पैनल हूं, मैं हूंगा, मेरे कुछ कोलीग होंगे जो कि जज करेंगे, और एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाएगा कि इंटरव्यू कंडक्ट करने का, ठीक है। तो 3 के 3 लोग होंगे जो कि बारी बारी क्वेश्चन पूछेंगे, और वो बिल्कुल इन्वायरमेंट वैसे ही होगा। जी, नो दैट इज टोटली वर्चुअल, हम जूम पे ही इसको कैरी करेंगे, जूम पे ही इसे कैरी करेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि ओवरऑल द पंजाब है, तो अगर मैं किसी सिटी में भी कैरी करता हूँ तो दैट इज नॉट फिजिबल फॉर ऑल कैंडिडेट्स, सो आई जस्ट आई विल कंडक्ट इन जूम सेशन एज वेल। ओके, तो सर हम भी इसे देख सकते हैं? वेल दैट इज द पेड सेशन। जो सेशन अभी स्टार्ट है उसके 3 सेशन हो चुके हैं, हमने एसएसपी को तकरीबन कर लिया है, एफएससी को कर रहे हैं। तो उसमें देखें एक्चुअली है, ये मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, और हम इसको इसीलिए ही कैरी कर रहे हैं क्योंकि मैं समझता हूं मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस लेस यू ब्लीड इन बैटल। आपको प्रैक्टिस में इनफ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपने जब आपका रियल इंटरव्यू नहीं हो उससे पहले आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर उसमें आपकी स्वेटिंग ज्यादा हो जाती है तो आप फिर रियल बैटल में बहुत कम ब्लीड होंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, एक और सिंपल सी बात है ये कि सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम को जब हम ड्राइव करते हैं तो हमारे पास जो टाइम पीरियड की जो हमारे पास आता है फॉर्मूला आता है, वो आता है ये वाला, and that is based on totally ideal conditions, means that there is no friction, the thread is actually stretchless, there is the mass of that bomb is pointless, okay, and there are many other assumptions, okay, but जब हम इसे सॉल्व करते हैं और जब हम इसका टाइम पीरियड निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली, इट मैच वेरी वेल। मतलब क्या है कि अगर आप आइडियल कंडीशन को फॉलो करते हो तो यू कैन परफॉर्म वेल in real situation as well. Okay, so that is the whole story. अगर कोई क्वेश्चन है इंटरव्यू और सेशन के रिलेटेड, you can ask me now because we have little time now. सर ये जो सेशन अभी चला है
यस अगर पॉसिबल हो तो आप इसका लिंक जो है वो अपने जो आपका यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप शेयर कर सकते हैं। नेट प्रॉब्लम की वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा हाँ, ये ऑब्वियसली ये एक प्रॉपर ओपन सेशन था, तो ऑब्वियसली इसको मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। है जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जो आपका पेड सेशन है उसकी टाइमिंग क्या है? वेल उसकी टाइमिंग है 6:30 PM, जो कि हम अभी स्टार्ट किया हुआ है। तो और उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है, आप ये इजीली उसको रिकॉर्डिंग को भी देख सकते हैं। लेकिन मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप, क्योंकि ये ऐसा नहीं है ना सेशन कि मैं टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो प्रिपरेशन टेस्ट की नहीं है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन में सर 1 to 1 यस इंटरेक्शन सेशन होता है, और वो 2 घंटे का चला जाता है, 2 से 3 घंटे तक चला जाता है। तो मैं जस्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, कॉल करता हूँ कोई भी कैंडिडेट जो रजिस्टर्ड है, उनको इनकी बारी होती है, मैंने एक टास्क दिया होता है कि इसको आपने प्रिपेयर करना है, उसकी डिस्कशन हो जाती है। तो उसके बाद मैं उसकी जस्ट एक इंटरव्यू की तरह मैं बस क्वेश्चन पूछ रहा होता हूँ और आंसर गेट कर रहा होता हूँ, और बाकी लोग सुन रहे होते हैं। इस तरह से बारी बारी सबकी बारी आती है। तो बहुत से सवालात जो हैं सारे कैंडिडेट सुन लेते हैं और आंसर करते हैं, और फिर उस पर दोबारा भी डिस्कशन हो जाती है। तो यही हम कर सकते हैं, इंटरव्यू से पहले हम यही कर सकते हैं, और यही हमारे बस में है। Sir, what will be the charges if we join, if we want to join that session now? चार्जेस आर सेम, जो कि हैं 3000। अगर खुदा न खास्ता अगर आपकी आप नहीं क्वालिफाई करते तो 1000 actually refundable. And if you want to join, then you just message Yes. WhatsApp on this number. That is the number of Nusrat Foundation and NF Science Academy. Thank you, sir. Okay. कुछ और क्वेश्चन है? सर रिजल्ट अनाउंस होने के बाद भी हम ज्वाइन कर सकते हैं ये? वेल जो आप तब प्रीमियम ज्वाइन सेशन है? करेंगे, तब आप ज्वाइन करेंगे ना, तो फायदा नहीं होगा, बिकॉज टाइम बहुत कम होगा, टाइम बहुत कम होगा। इवन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए, और ऑनेस्टली मैं नहीं नोट्स बनाता। मैंने ना BSc में बनाए हैं, ना मैंने MSc में बनाया, ना MPhil में बनाया। हाँ, मैं ले लेता होता था दोस्तों से कि यार दे दो मुझे, मैं कॉपी करवा लेता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जरूरत होती है, लेकिन मैं खुद नहीं था लिखता। लेकिन इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैंने खुद लिखा। क्यों? क्योंकि आपको उसको रिपीट करना पड़ता है ना बार बार, कि मैं किस तरह से, अब मैं यूनिट सेल को किस तरह से एक्सप्लेन करूंगा, मैं मोमेंटम को किस तरह से एक्सप्लेन करूंगा। मोमेंटम की एक फॉर्मल डेफिनेशन है, एक इफेक्टिव डेफिनेशन है। न्यूटन लॉ की इफेक्टिव डेफिनेशन भी है, फॉर्मल डेफिनेशन भी है, फिजिक्स की इफेक्टिव डेफिनेशन भी है, नॉर्मल डेफिनेशन भी है। ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क ऑन दैट थिंग, तो फिर उसके लिए लिखना पड़ता है। तो वो भी हम साथ साथ कर Okay, रहे sir. हैं। If we join एक्चुअली this सर ये है session ना right now, okay, you carry on. जी। थैंक यू। सर मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया था कि अभी जो रिसेंटली मैं एक और सेशन ये ले रहा हूँ इंटरव्यू के सिलसिले में। तो एज प्रैक्टिस जो आप मॉक इंटरव्यू लेंगे, ओके, वहाँ पे भी 2-3 होंगे, और आपका भी जो वो प्लान 3 इंटरव्यू का है, यस। तो ज्यादा मॉक इंटरव्यू करने के लिए मैं पूछ रहा हूँ। मॉक एक्चुअली मैंने ना कोई कम्प्लेक्सिटीज रखी नहीं है। If somebody want to join at the first stage, this fees is same. If somebody want to join at the end of that session, the fees is actually the same, because जो मुझे हार्ड वर्क करना पड़ता है वो तो करना पड़ता ही है ना। तो अब अगले बंदे पे बेस करता है कि वो उसके लिए क्या फिजिबिलिटी है। तो ऑब्वियसली मैंने सेशन की कोई फीस कोई 7-8-10 हज़ार नहीं रखी हुई, क्योंकि मुझे पता है कि अभी लोगों की जॉब नहीं है, ठीक है ना, जिनको मैंने क्या कहते हैं टीच करना है। तो मैंने इतनी रखी है फीस कि वो भी अफोर्डेबल हो, मतलब लोग पे कर सकें, और ऑब्वियसली मैं टाइम दे रहा हूँ अपना, तो ऑब्वियसली फिर उसके लिए चार्ज, मैं सिर्फ टाइम के ही चार्जेस होते हैं। अगर इसको फ्री भी किया जा सकता होता तो Sir, if we join in the session that you are carrying, you are continuously taking from the last week, yes, then the last lectures will yes, be you can the get, recording yes, of you, the last lecture. yes, you can get the recording of all previous lectures. Thank you, sir.